मैं हूँ फैज़ नसीम, एक और प्यारे इस व्लॉग में खुशामदीद। तो जैसा कि आज मेटा लाइब्रेरी एजुकेशन जो कि मौदार रहमानी इंटर कॉलेज इंजीनियर हाजी ट्रैवल के बगल में है, यहाँ पर आज जैनत क्यूज़ और इकरा क्यूज़ का फाइनल कंपटीशन चल रहा है और अभी 3 बजे से शुरू हो रहा है इस्लामिक स्पीच कंपटीशन। चलिए बिना किसी देर करे चलते हैं। A few moments later. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मोहम्मद मुस्तफ़ा मुमताज़ है यूं सब रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुमताज़ है यूं सब रसूलों में, जैसे फ़ौक़-उल अफ़ज़ल ज़माने भर के फूलों में। हज़रात समाईन इकराम, मेरी आज की तकरीर ये चंद नीली पाम इस बात पर शाहिद वादिर है कि आने को इस दुनिया में लाखों मुस्लिमीन व सालकीन आए, करोड़ों बंदगान खुदा और ज़ुहादे आए, लेकिन जो भी आया वो सिर्फ जाने के लिए ही आया। मगर जब जबर व तशद्दुद की तेज हवाएं चलने लगी, नफरत व अदावत के शोले भड़कने लगे, फजाए कायनात पर जुल्म की घटाएं छाने लगी, तो उस वक्त अब्र के तपते हुए इशारा में खुदा का आखिरी रसूल आया, जो सिर्फ पानी के लिए ही आया, जो आया तो आता ही चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया, जो इंसानियत का गमखुर और मजलूम का मददगार बनकर आया, जो सैयद कुल हादी सुबुल कौनैन का सरवर साफी महशर, जो हसीन व हसीन तहा व यासिर रहमतुल लिल आलमीन और सारी कायनात में सबसे बेहतरीन। अगर दुनिया के तमाम दरख्तों कलम बना दिए जाए, अगर दुनिया के तमाम दरख्तों कलम बना दिए जाए और तमाम समंदरों की साही बना दी जाए, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखना चाहे तो समंदर सूख जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, लेकिन आपकी सीरत मुकम्मल कभी नहीं हो सकती। जिस तरह किसी शायर ने कहा, चलता ही रहा सदियों वो कलम, पूरी नहीं हुई रुदा के तरफ, दरियाओं का पानी सूख गया और साफ नबी लिखते लिखते। जिस तरह इसी साथ में अपनी तकरीर पूरी करती हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected principal, honorable teachers, and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is my ideal as a human in this world. Every person has an ideal personality. Like this, I also have an ideal person, and he is my ideal too. I want to follow him. The personality is I am talking about is our lovely holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for whom the world is treated to you. Oh my hope, my hand, I stress second point. My master, I am very list. If you are here, I don't fetch. You are the beloved and the light of my innocence. My light and lantern for my past and future more intense. Dear fellows, I in a head is Allah says to Hazrat Adam alayhi salam. Muhammad would not be created to you, also not be created. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, teachers, friends and class fellows, today my topic is Ramadan in Islamic speech. Ramadan is a very special month of the year. Ramadan is also known as a Ramzan. Ramadan is also known as a Ramzan. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Fasting starts on the first rays of light strike the horizon and stop on the sunset. Muslims eat meat before downfall suhoor and break their fast with a short meal known as a iftar. Their fast with a short meal known as a iftar around sunset. Ramadan is a period of prayer, fasting, fasting and self-accountability of Muslims. It is the month of Allah Almighty, opening the door of blessings for the Muslims. Hello everyone, myself Zidana Siddiqui from class 8 of St. Paul's Inter College. Our today's topic is kindness and compassion in the teachings of Prophet Muhammad. Today I want to reflect on the profound teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, a man who embodied kindness, compassion and mercy. He said kindness is a mark to faith. A man without kindness is without faith.
In conclusion, the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, reminds us that kindness and compassion are essential in our life. Let us be the ones who build bridges, not walls. The Prophet's, peace be upon him, own life was a testament to his compassion and kindness. The Quran emphasizes the importance of mercy and compassion. Thank you. Good evening everyone, my name is Shravullah from class 8th of St. Paul's College. Today I am going to have an Islamic speech on the topic in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kindness and teaching, kindness and compassion. In Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kindness and compassion is our teaching, and Quran refers to him as the mercy to the world. He started teaching Muslims to be a compassionate. Some of the examples are consoling a child, dispute his all activities. He consoled a child who was grieving the loss of a pet. And second, teaching the importance of mercy. In Islam, kindness is not just a thing, it is like a pillar of Islam. And Quran is a constant reminder of this thing. Some of the other teachings include justice, patience, honesty, and respecting parents. Thank you. शुरू करती हूँ मैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। मैं सैफा बानो, आज मेरा ये उन्वान है, ये देश हमारा है, पुकार है, ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपने जानों का रज़गाना देकर ये वतन हासिल किया। कई माओं ने अपने लहते जिगर खोए, कई बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियां दी, तब जाकर ये वतन हासिल हुआ। जा बहन, मैं देखती हूँ कि यहाँ गरीब का बच्चा 2 वक्त रोटी के लिए तरसता है। जा बहन, मैं देखती हूँ कि यहाँ हर गली से ये नारा होता है, मेरी नज़र में तू काफिर, तेरी नज़र में मैं काफिर। तो ये कहना पड़ता है ये देश हमारा है, इसे हमने ही बिगाड़ा है। जनाब सदर, मैं देखती हूँ कि वे मुसलमान तो हैं मगर मुसलमानी नहीं, कुरान तो है मगर रमज़े कुरानी नहीं, अरे मस्जिदें तो हैं मगर रूहे बिलाली नहीं। जनाबे आला, तो ये कहना पड़ता है ये देश हमारा है, इसे हमने ही बिगाड़ा है। गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को, गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को। गरीब का बच्चा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करता है, मगर अमीरों का, जाकिरदारों का और बटेरों का बच्चा एसी वाले कमरे में बैठकर तालीम हासिल करता है। जनाबे आला, तो ये कहना पड़ता है ये देश हमारा है, इसे हमने ही बिगाड़ा है। अस्सलाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लल्लाहु बारिकु लिबादिन अदुव्वन लिल मुत्तक़ून। सदर मुहतरम व हाजिरीन, महफ़िल में आज के सामने से मुशान इजलास में अर्ज़ करना चाहती हूँ कि आखिरत में किसकी मोहब्बत काम आएगी। मुहतरम सामाईन, आज यूँ तो हर शख्स दूसरे से मोहब्बत का दावा करता है, अपनी नीयत का इज़हार करता है, लेकिन उसके पीछे खुदगर्ज़ी, मफाद परस्ती का राज होता है। हमारी दोस्तियाँ अच्छे आमाल पर आमादा नहीं करती, हमारा ताल्लुक़ गुनाहों से नहीं बचाता। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन साथी वो है जो हमें गलतियों पर टोके। हज़ार मुसलमानों का आपस में सच्ची नीयत से मेलजोल रखना, ताल्लुक़ रखना, मोहब्बत करना उसकी बड़ी फजीलत आई है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे वास्ते आपस में मोहब्बत करने वाले नूर के मेंबर ऊपर होंगे, जिनको देखकर हज़रात अंबिया व शुहदा इश्क करेंगी।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसान का माहौल अहम मजलिस उस पर हमेशा असरअंदाज होता है। नेक माहौल और नेक लोगों की शौबत से बुरा इंसान बदलकर भी नेक बन जाता है, जबकि बुरे माहौल और बुरे लोगों की हमनशीन इख्तियार करने से नेक शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता गुनहगार बन जाता है। लिहाजा गलत माहौल और बुरे दोस्त भी एक गुनहगार शख्स की तौबा में रुकावट बन जाते हैं। मसलन जब एक गुनहगार इंसान दूसरे गुनहगारों को गुनाहों में मुलव्वस देखता तो वो यह सोचकर गुनाह का इर्तिकाब करता है कि जब ये मेरी तरह गुनहगार है तो फिर मुझे पाकबाज बनने की ज़रूरत है। इसी तरह उसे भी होता है कि जब एक गुनहगार इंसान तौबा की तरफ रग़बत करने लगता है तो उसके बुरे दोस्त उसे तौबा करने से रोकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की शौबत छोड़े बगैर तौबा की तौफीक मुश्किल है। इसीलिए हर मुसलमानों को इसका अहद करना चाहिए कि हम खुद सच्चे बनेंगे और सच्चों से ताल्लुक़ रखेंगे। अंजाम वफा क्या हो गया ये सोचा नहीं करते, अंजाम वफा क्या हो गया ये सोचा नहीं करते, मोमिन अभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है दीने इस्लाम ने, ये हौसला सिखाया है दीने इस्लाम ने। अगर सर सजदे में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते। ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, जहाँ जुल्म की कसरत वो निज़ाम आखिरी है। चलिए अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, dear brothers and sisters in Islam and all the Algerians. Myself, Aisha Siddiqui of class 10 from GC Convent School. Today, I want to talk to you about a vital segment of our community, which is based on youth in Islam, responsibilities and opportunities. So, let's start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. The youth. As young Muslims, you are the future leaders, thinkers and change makers of our ummah. You are the ones who will shape the destiny of Islam. You have several responsibilities and opportunities that come with being a young Muslim. In the Quran, Allah says, and we have certainly honored to be the children of Adam alayhi salam. According to the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Quran, youth have several responsibilities, including seeking knowledge. Prophet Muhammad, peace be upon him, emphasizes the importance of seeking knowledge, especially for young people. He said, seeking knowledge is obligatory for every Muslim. Second, respecting elders. Prophet Muhammad, peace be upon him, emphasizes the importance of teaching respecting elders. He said, paradise is at the feet of mothers. Third, being productive. In the day of Qiyamah, a person will be asked about his time, how he spent it, and about his body, how he used it. Fourth, being honest and trustworthy. Prophet Muhammad, peace be upon him, emphasizes the importance of being honest. He said, honesty is the foundation of faith. Fifth, practicing Islam. As young Muslims, it's crucial to practice Islam in its entirety. Perform your daily prayers, fast during Ramzans, give charity, and uphold the values of justice, compassion, and mercy. Here are some responsibilities. Now we will discuss about the opportunities. First, leadership. Prophet Muhammad, peace be upon him, encouraged young people to take the leadership roles and to make a positive impact on the society. Allah says, the best of you are those who are most beneficial to others. Second, innovation. As young Muslims, you have the opportunity to innovate and find creative solutions of problems facing by our community. Third, education. Islam places a high value on education and encourages people to learn new skills. Fourth, opportunity to worship and obey Allah. We have opportunity to worship and obey Allah and to develop a strong relationship with Him. The best of you are those who are most obedient to Allah. Fifth, volunteering. Islam encourages to volunteer our time and to help needy persons. Islam can also lead to the mentorship, personal growth, spiritual growth, and community service. In conclusion, dear youth, Islam offers you a wealth of responsibilities and opportunities. Remember that your actions have consequences, not just in this life, but also in the hereafter. Strive to be the best Muslim you can be. Use your talents and abilities to make a wonderful impact on this world. Alhamdulillah, I am grateful for your time. May Allah guide and bless you on your journey. Ameen. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, Muslim youth should present the image of faith, purity of life, sincerity, courage, and kindness and bravery. Muslim youth should emulate the good example of their great predecessors.
Muslim youth should contribute greatly to the development of their communities, loving his community for the sake of Allah, sincerely, truthfully, and treating all his creation with respect and kindness. Thank you. जनाब सदर मोहतरम नाज़िम इजलास सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ कहने और सुनने से पहले आप सभी हज़रात एक बार दुरूद शरीफ नज़राना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ये जो आज का फंक्शन रखा गया है, ये बगैर खाली मैं आपकी वजह से सबके रूबरू आज खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको काफ़ी तारीफ़ समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बनाने की ज़रूरत थी। तो मैं मतलब इस्लाम के ऊपर कोई गुफ्तगू करूँगा, आप सभी हज़रात बगौर समाप्त करवाएँ। लोग कहते हैं कि इस्लाम 1500 साल पहले आया। गौर करिएगा, लोग कहते हैं कि इस्लाम 1500 साल पहले आया। मैं इन्हें ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस दुनिया में मुकर्रर है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मुकर्रर रहेगा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार, बंदूकों और वेपन से फैला। मैं ये कहना चाहूँगा इस्लाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से फैला, हुस्न इखलाक से फैला, उनके कैरेक्टर से फैला, बिहेवियर से फैला और उनके रोल से फैला। और शेर समाज फरमाए, वो रहे महफूज हरदम गर्दिशों की मार से, वो रहे महफूज हरदम गर्दिशों की मार से, जो भी वाबस्ता हुए हाशमी सरदार से, जो भी वाबस्ता हुए हाशमी सरदार से। हम मुसलमान है परेशान, इसमें कोई शक नहीं, हम मुसलमान है परेशान, इसमें कोई शक नहीं। बेच कर ईमान हम सब गिर गए किरदार से, बेच कर ईमान हम सब गिर गए किरदार से। आइए हजरात, मैं कुरान की एक छोटी सी वो बयान करूँगा, आप थोड़ा समाज फरमाएं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 आयत नंबर 19 से ये है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि माँ की गोश्त से लेकर कब्र की आगोश तक, माँ की गोश्त से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म दीन सीखना और सिखाना हर मोमिन के लिए फ़र्ज है, कंपलसरी है। और जब कुरान की बात हुई गई है तो मैं आपको बता दूँ, कुरान मजीद 23 साल 3 महीने 13 दिन में मुकम्मल हुआ। और खुशखबरी की बात की है कि रमज़ान में नाजिल हुआ। और इत्तेफाक की बात ये, जितनी भी जंगें हुई वो सब रमज़ान ही में हुई। ऐसी पहली जंग हुई जंग बदर, जिसमें 313 वर्सेस 1000 कुफ़ार मक्का थे। उस पर तवज्जो फरमाएं, उस पर कुफ़ार मक्का को बेहद शिकस्त दी। उसके बाद इस्लाम की पहली जंग फतेह हुई। उसके बाद जंग ओहद हुई, वो 700 वर्सेस 3000 हुई, जिसमें से एक सहाबी इकराम शहीद हो गए और हुज़ूर सल्लम भी तो ज़ख्मी हुए थे। और ये दूसरी थी जीत, तो इस्लाम ने जो दूसरे को शिकस्त दी थी, ये दूसरी जीत थी उनकी। और हज़रात, हदीस पाक है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इस्लाम में दीन सीखना और सिखाना फ़र्ज है, हर मोमिन हर औरत आदमी के ऊपर ये फ़र्ज है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब इन्होंने इस्लाम को फैलाया तो इन्होंने अपने हुस्न इखलाक पेश किए, ना कि कोई वेपन से कुछ फैलाया। जो बहुत सी अफवाह उड़ती रहती हैं कि इस्लाम से पहले ख़वातीनों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग जब वो पैदा होती थी तो लोग उन्हें जिंदा दफना देते, आपने सुना भी होगा कि उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। जब हुजूर सल्लम 25 साल के हुए तो उन्होंने 40 साल की बेवा हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और बेवाओं को इज्जत दी और लड़कियों को जिंदगी मिली। तो हजरात, मज़हब इस्लाम पर तन मन धन कुर्बान सेक्रीफाइस करने के लिए हर मुसलमान 24 घंटे खड़ा रहता है। एक शेर समाज फरमाइएगा, तुम जितना तराशोगे ये उतना सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे ये उतना सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटोगे हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटोगे हरा होगा। हर मर्द मुजाहिद को कब खौफ मरने से, हर मर्द मुजाहिद को कब खौफ मरने से तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन, सदर अली वकार और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है उसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सदर अली वकार रहमतुल लिल आलमीन यानी कि हमारे प्यारे नबी के जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, हज़रत आदम की बुजुर्गी से लेकर हज़रत नूह की तबलीग तक और हज़रत दाऊद की कुर्बानियों से लेकर हज़रत यूसुफ के हुस्न तक तमाम अंबिया की कमालात, सिफात और मोजिज़ात हमारे प्यारे आका को अल्लाह ताला ने अता किए। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। गोया आपकी तालीमात बरोज़े क़यामत तक इंसान के लिए फलाह है और इंसान की मेराज का ज़रिया है। कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, तो कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा। जहाँ इंसान तो थे मगर इंसानियत न थी, जहाँ दिल तो थे सुए दिल नवाजी न थी, जहाँ रूह तो थी रूहानियत न थी, जहाँ भाई भाई का दुश्मन था, कबीला कबीले का हरीफ था, हमसाया हमसाए का रकीब था, मगर जब हुजूर आए तो सरे आखिरी रश्क पा गई दुनिया, मगर जब हुजूर आए तो सरे रश्क आखिरी पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सदर अली वकार आलमीन के जानिसारों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कहीं कत्ल व गारत की कोई मिसाल कायम न की। आपके दरवाजे पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, अली आए तो असदुल्लाह बन गए, खालिद आए तो सैफुल्लाह बन गए। आपकी राह में कांटे बिछाए गए मगर आप जन्नत की फूलों की बशारत देते रहे। आपके चेहरे पर गिलाज़त फेंकी गई मगर आप दुश्मनों के हक में दुआ करते रहे कि मोहम्मद से वफा तूने की तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने की तो हम तेरे हैं, ये चीज़ है लौह कलम तेरे हैं। आप सभी की समातों का बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनाब सदर मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तकरीर का आगाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तकरीर का आगाज़ करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल अहज़ाब में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से उसकी मदह सराई किस तरह हो, बंदे से उसकी मदह सराई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत के लिए नबियों को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 नबी भेजे और इस सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। हर नबी की ज़िंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक के लिए उनकी मुबारक ज़िंदगी ही हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। सदर-ए वक़ार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद रास्ता है जिससे हम जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ख्वाह इस शोबे का ताल्लुक मुआशरती ज़िंदगी से हो या मुआशरती ज़िंदगी से। मसीह खाम को जिसने कुनूद बनाया, मसीह खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आज मेरी तकरीर का अनवान है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक़ शान है। आज मैं एक हदीस पाक सुनाती हूँ। हज़रत दलाइलुन नबुव्वह किताब में लिखा है कि हज़रत ज़ैद बिन साअद रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कि यहूदी आलिम थे, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूरें खरीदी थी। खजूरें देने की मुद्दत में अभी 1-2 दिन बाकी थे। उन्होंने बड़े मज़बे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्ख़ आवाज़ में सख्ती के साथ दामन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन और चादर पकड़कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का यही तरीका है कि हम सब कि तुम लोगों का हकूक़ अदा करने में देर लगाया करते हो। ये सब सुनकर हज़रत उमर फारूक आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ये सब सुनकर बहुत अपने आपा खो बैठे और उन्होंने निहायत गुस्से में कहा कि ए खुदा के दुश्मन, तू खुदा के रसूल से ऐसे गुस्ताखी क्यों कर रहा है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की जब ये बात सुनी तो हुज़ूर पाक ने कहा कि ए उमर, तुम ये क्या कह रहे हो, जबकि तुम्हें अवामे कर्ज की तारीख देकर उनको उनके घर के खजूर लेके उनको तकाज़ा कर दीजिए। तो उन्होंने उमर ने उन्हें खजूरें ज़्यादा दी, खजूरें ज़्यादा दी। तो हज़रत ज़ैद बिन साअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए उमर, तुम मुझे ज़्यादा खजूरें क्यों दे रहे हो। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने आप पर जो गुस्सा किया है, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि उन्हें ज़्यादा खजूर दो। तो हज़रत ज़ैद बिन साअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए उमर, तुम मुझे ज़्यादा कि मैं हज़रत ज़ैद बिन साअद हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम यहूदी के आलिम हो। तो सबसे पहले सबने बहुत अच्छा बोला, तो उसके लिए ठीक है। और इस बार ज़्यादातर लोगों ने टॉपिक पर ही बोला, कुछ ही लोगों ने आउट ऑफ द टॉपिक बोला, बट दैट्स फाइन। और जब टाइम दिया जाए ना, जैसे 3 से 4 मिनट दिया है, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि उतना कंटेंट रखो। कुछ लोगों का, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कंटेंट बहुत ही कम बोला उन्होंने, है ना। 1 मिनट के अंदर भी पूरा 1 मिनट भी नहीं बोल पाए। तो कोशिश करो एटलीस्ट अगर 3 मिनट 4 मिनट का है तो 3-4 मिनट तक आप बोलो। लेकिन बहरहाल ओवरऑल एवरीवन हैज़ डन वेरी वेल। ओके, बहुत अच्छा बोला। और 1st to 5th में बताओ कौन है थर्ड प्राइज, किसको मिलेगा थर्ड प्राइज। रुबीना थर्ड प्राइज। रुबीना कौन है? थर्ड प्राइज। और बहुत अच्छा बोला तुमने, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक था, अगर वो टॉपिक पर होता तो तुम्हें 1 मार्क्स ज़्यादा मिल जाता। 1 मार्क्स तुम्हारा उसका कट गया। सेकंड प्राइज बताओ कौन है। सेकंड प्राइज गोज टू आनिया उनीश। तो आनिया उनीश ने टू द टॉपिक, और जो टॉपिक था दी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, व्हाट दे टीच अस। इस्लाम के 5 स्तंभ वो हमें क्या सिखाते हैं, है ना। 1-2 लोगों ने सिर्फ वही बोला 5 पिलर क्या हैं, वो क्या सिखाते हैं उस पर किसी ने वो नहीं किया। आनिया ने उस पर अच्छा कंटेंट लिखा और वो क्या सिखाते हैं उस पर बोला। तो दैट वाज द मेन टॉपिक, है ना। तो उस टॉपिक पर बोला, तो उसके लिए और द वे उसने अच्छी तरीके से बोला। और हु गोज द फर्स्ट प्राइज? अलीफ अजीम। खड़े हो जाओ। अच्छा बोला तुमने, ये खड़े हो जाओ। आनिया में और अलीफ में
फर्क क्या था, आनिया का कंटेंट थोड़ा सा लेस रह गया इन कंपैरिजन टू अली फजीम। अली फजीम का कंटेंट ज्यादा था, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा बोला, बोलने में दोनों को सब बराबर। अगर कंटेंट आनिया का 1-2 पॉइंट और हो जाते तो बाजी मार जाती है आनिया अपनी, ठीक है। और कोशिश यही करो कि टॉपिक पर ही बोलो, और टॉपिक पे दोनों ने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। और नसीरुद्दीन सुजाउद्दीन सिर्फ 5 पिलर ऑफ इस्लाम नहीं है, व्हाट दे टीचर्स, वो हमें क्या सिखाते हैं उस पर भी बोलना होता है ना। कहाँ गए जो तुम, सिर्फ 5 पिलर पर ही नहीं बोलना था, वो क्या सिखाते हैं वो भी बोलना था, है ना। नमाज से हम क्या सीखते हैं, ज़कात क्यों देते हैं, है ना, वो चीज़ क्या सिखाती है, तो वो सब पे बोलना था। 6 to 8 में बताओ थर्ड प्राइज किसको मिलेगा? आलिया, हु इज आलिया? थर्ड प्राइज टू आलिया। आलिया को 1 पॉइंट और मिल जाता अगर वो टॉपिक पर होती, ठीक है। टॉपिक था काइंडनेस एंड कंपैशन इन द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट, काफी था लेकिन थोड़ा और उस पर होता, है ना, थोड़े 1-2 पॉइंट और होते तो और अच्छा होता, लेकिन बोला बहुत अच्छा। ऐसे ही बोलना और अच्छे से इस पर तुम तैयार करना, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पे दया और करुणा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमियत और शफकत की हमदर्दी शफकत और हमदर्दी। तो इसमें थोड़ा सा और बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स तुम्हारे टॉपिक पर थे लेकिन कुछ ऑफ द टॉपिक थे, वरना 1 पॉइंट और मिल जाता। सेकंड प्राइज किसको मिलेगा, कोई आइडिया? माहिनूर फातिमा, बहुत अच्छा बोला माहिनूर। एंड फर्स्ट प्राइज कौन है? आशना बानो, कौन है आशना बानो? तो आशना बानो, अब आपको तैयार करना है एसएसबी के लिए अच्छे से, ठीक है। और अली फजीम आपको भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर 9th-10th में बताओ थर्ड प्राइज किसको मिलेगा? थर्ड प्राइज किसको मिलेगा? मोहम्मद रेहान, ठीक। बहुत ही अच्छी आवाज थी मोहम्मद रेहान, ऐसे ही बोलना। सेकेंड प्राइज कोई आइडिया? रहनुमा नाज, तुमने भी बहुत अच्छा बोला, ऐसे ही रहना। एंड फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा? फर्स्ट प्राइज मिलेगा आयशा सिद्दीकी। ठीक है, और उसके बाद में 11th-12th, हाँ 11th-12th में तो 2 ही लोग थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो कर लेते हैं, और दोनों ही ऑफ द टॉपिक थे। पहली चीज, टॉपिक पर ही नहीं थे तुम लोग। टॉपिक था हाउ इस्लाम इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, है ना। इस्लाम कैसे आलोचनात्मक सोच और चिंतन को प्रोत्साहित करता है, इस्लाम किस तरह तनकीदी सोच और उकासी की तरगीब देता है, ठीक है। चलो खैर, अब बताओ तुम लोग सेकेंड प्राइज किसको दिया जाए?
नजरीन बानो। ठीक है, खड़े हो जाओ। और फर्स्ट प्राइज नसीबा परवीन। अब नसीबा परवीन, अब आपको ये है कि ये जो टॉपिक है अब आप इस पर तैयार करके लेकर आओगे, 25 दिसंबर को आप सुनाओगे। अगर आपका इस लायक होगा तो आपको एसएसटी में बोला जाएगा बोलने के लिए, अदरवाइज नहीं। अभी आप अपना टॉपिक नोट कर लेना, ठीक है। तो और स्पीच में जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप अपना तैयार करके लेकर आओ, और इस तरीके से तैयार करके लेकर आओ कि अगर वो अच्छा होगा तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, नहीं तो नहीं बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो आप जिनका भी नाम लो वो खड़े हो जाना। ठीक है। अली फजीम फर्स्ट प्राइज है, आनिया उमीश सेकेंड प्राइज, रुबीना थर्ड प्राइज, खड़े रहना। आशना बानो, माहिनूर फातिमा, आलिया, आयशा सिद्दीकी, रहनुमा नाज, मोहम्मद रेहान, नसीबा परवीन, नजरीन बानो, ये हैं आज के विनर्स इस्लामिक स्पीच के। ठीक है। और हम लोग जितने भी विनर्स हैं उनको हम एक दिन पहले भी बुलाएंगे, और एसएसडे में तो आने ही आना है। फिर 29 को इस टाइम, मतलब अभी कितना हो रहा है टाइम, 4 बज रहा होगा, 4:30 है ना। तो 4 बजे आना होगा, जस्ट असर के बाद से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो मोमेंटो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। दोस्तों, आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा, जो कि इस्लामिक स्पीच कंपटीशन का था। इसमें लड़की और लड़कों ने शानदार माशाल्लाह स्पीच दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो बहुत बढ़िया ब्लॉग दिया। ब्लॉग में पहली बार आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।